Now I am going to start new chapter electric current and its effect. Chapter 14 NCERT Class 7. Under this chapter we will learn about symbols of electric component. Example of electric components are electric cell, electric bulb, switch, battery and wire. Second topic is heating effect of electric current. इस टॉपिक में आप इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल. ओके स्टूडेंट्स. चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि क्लास 6 में पहली एंड बूजो ने गेम के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट रेडी किया. They had lot of fun trying it out with their families and friends. तो पहली उस सर्किट का एक नीट डायग्राम बनाने की कोशिश करती है. You can see this diagram in 14.1 figure. Can you draw this diagram, this circuit conveniently? तो यहीं से आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट को आप कन्वीनियंटली सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अब हम देखेंगे. In the symbols for the electric cell, there is a longer line and a shorter line. Longer line represent the positive terminal and the shorter line represents the negative terminal of the cell. The second component is electric switch. Switch is used to control the amount of electric current in any circuit. For a switch, the on position and the off position are represented by the following symbol. On position means electric current passing through the circuit, and off position means when no current flowing through the circuit, means switch is off. Next component is battery. When we connect two or more cells together in such a way of that positive terminal of one cell is connected to negative terminal of next cell, such a combination of two or more cell is called battery. Many devices such as torches, transistors, toys और टीवी का रिमोट कंट्रोल को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है. How can we connect the cells to prepare batteries for our daily purpose uses? इसके लिए सबसे पहले हम सेल होल्डर बनाएंगे. सेल होल्डर बनाने के लिए एक वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप्स, रबर बैंड ज़रूरी होगा. रबर बैंड मेटल स्ट्रिप को टाइट रखता है. We can buy cell holder from the market from making batteries of 2 or more electric cells. The cell holder में एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और पीस ऑफ वायर को दोनों मेटल क्लिप से जोड़ देते हैं. ओके स्टूडेंट्स. बैटरी का यूज़ ट्रैक्टर, ट्रक्स एंड इन्वर्टर में भी होता है. इसमें भी सेल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. बल्ब जब जलता है यानी व्हेन बल्ब ग्लोज व्हेन स्विच इज इन ऑन पोजीशन एंड द सर्किट इज सेट टू बी क्लोज. क्लोज सर्किट मीन्स द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट. When the switch is in off position, the circuit is incomplete. It is said to be open. Means no current flows through any part of the circuit. In the bulb, there is a thin wire called a filament, which glows when electric current passes through it. When the bulb gets fused, इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन. बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है. नेवर टच अ लाइटेड बल्ब बिकॉज जलते हुए बल्ब को कभी नहीं छूना चाहिए
क्योंकि बल्ब गर्म हो जाता है और आपका हाथ भी जल सकता है। And do not experiment with the electric supply from the mains or generator or an inverter. You may get an electric shock. इसीलिए प्रैक्टिकल और एनी एक्टिविटी के लिए सेल के कॉम्बिनेशन से बनी बैटरी को ही यूज़ करना चाहिए। Heating effect of electric current. When an electric current passes through any conductor, it becomes hot. This is called the heating effect of electric current. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब। इन सब में एक कॉइल होती है जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। All these contain a coil of the wire. This coil of wire is called an element. When switch is in on position, this element becomes red and hot and gives out the heat, and the amount of heat produced in a wire depend on its material, length and thickness. Different requirements के लिए एलिमेंट वायर डिफरेंट मटेरियल की, डिफरेंट लेंथ के लिए और डिफरेंट थिकनेस की यूज़ की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब आर ऑफन यूज फॉर लाइटनिंग, बट ये हीट भी देते हैं। इट मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज यूज इन प्रोड्यूसिंग हीट। दिस इज द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स और CFL लैम्प्स का यूज़ किया जाता है आजकल, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट लाइट सोर्स हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मरकरी फिल होती है जो टॉक्सिक नेचर की होती है। देयरफॉर डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFL नीड टू बी डिस्पोज ऑफ सेफली। Nowadays, the use of light emitting diode bulbs is increasing because LED bulbs consume less electricity as compared to bulbs, tubes and CFL. Bureau of Indian Standard न्यू दिल्ली ने एक स्टैंडर्ड ISI मार्क प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है और हमें ISI मार्क्स के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की क्वालिटी को बताना या उसकी जो एश्योरिटी है और उसका जो स्टैंडर्ड है वो केवल ISI मार्क से ही पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स।